Hello and very good morning to all my dear students. Myself Tosep sir. Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं पेट्रोलियम के बारे में. पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा हुआ था हाउ द coal is manufactured or coal is obtained from the natural resources and how it is processed and converted into the various usable forms. So today we will have a brief discussion about the petroleum. We know that the petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Petrol or diesel, which is a obtained product from the petroleum, is frequently utilized in the four-wheelers as well as two-wheelers. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesels, while the small automobiles like scooters, motorcycles, mopeds, which are run on petrols. And petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. Let us know how this petroleum is formed. Petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. पेट्रोलियम जो है वो फॉर्म होता है समंदर के अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स है वो जब भी मर जाते हैं और उनकी बॉडीज़ जो है वो समंदर के तट के ऊपर मतलब बहुत गहराई में कवर्ड हो जाती है सॉइल और मिट्टी से सैंड यानी कि रेत और मिट्टी से. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. लाखों करोड़ों सालों तक हवा के अभाव के कारण, ज़्यादा तापमान और ज़्यादा दबाव के कारण जो ये डेड ऑर्गेनिजम्स यानी कि मरे हुए जीव है वो पेट्रोलियम और कुदरती वायु के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो इस तरीके से बनता है पेट्रोलियम. दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ मेकिंग. Though it is a complex substance, but the procedure it takes a lot of time, and that time is in million years. So it is much lot time. Let us look at figure how it is obtained. Petroleum and natural gas deposits, जहाँ पे इसके भंडार होते हैं पेट्रोलियम के वहाँ पे से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. In this figure, it shows the deposits of petroleum and natural gas. We see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. यानी कि पेट्रोलियम कंटेन करके जो लेयर होता है वो पानी के ऊपर के भाग में होता है. यानी कि यहाँ पे सपोज दिस इज वाटर एंड एट द सरफेस oil and natural gases lies. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. यानी कि ऑयल और गैस जो है उसकी घनता यानी कि डेंसिटी सॉरी वो हल्के होते हैं. ऑयल और गैस जो है वो हल्के होते हैं पानी के कंपैरिजन में, इसीलिए वो फ्लोट करते हैं वाटर के अंदर और इसलिए वो उसके साथ मिक्स नहीं होते. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल इन पेनिनसिल्वेनिया यूएसए इन 1859. 8 years later in 1867 oil was struck at माकूम in Assam. यानी कि 1867 के अंदर जो माकूम नाम का प्रदेश है आसाम के अंदर वहाँ पे से ऑयल मिला. इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. कृष्णा और गोदावरी नदी के जो मैदानी प्रदेश है वहाँ से, गुजरात, मुंबई हाई जो उसके पास का विस्तार है वहाँ से और आसाम में से ऑयल का भंडार मिला हुआ है. So this is a brief discussion about the petroleum. Now we will discuss about the refining of petroleum, how the petrol will refined. First of all, petroleum is a very dark and oily liquid. So petroleum it is in a liquid form, while coal, which is obtained from the
land reserves, it is in a solid form. It has a unpleasant odor, बहुत ही दुर्गंध लायक ये प्रवाही होता है. It is a mixture of various constituents such as petroleum, gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. जो पेट्रोलियम है वो इन सारे सब्सटेंसेस का मिश्रण होता है. एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. यानी कि इन सभी कंस्टिट्यूएंट्स को, इस सभी जो मुख्य घटक है पेट्रोलियम के, उनको अलग करना, इसको कहा जाता है रिफाइनिंग. इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. ये हम पेट्रोलियम रिफाइनरी में से बाहर इसे निकाला जाता है. वेरियस कंस्टिट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल नंबर 5.1. पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि उसके घटक. पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसे हम लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक है, एलपीजी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस which we are utilizing in our homes. Fuel for home and industry is the basic application of this LPG petrol. इसके बारे में शायद ही मुझे कुछ कहने की ज़रूरत पड़े आप जैसे स्टूडेंट्स को. केरोसिन, पुराने ज़माने में केरोसिन का इस्तेमाल खास करके घरों में खाना पकाने के लिए स्टव्स में और केरोसिन लैंप के अंदर किया जाता था. फोर्थ वन इज डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. डीजल जो है वो बड़े भारी वाहनों में और इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. लुब्रिकेटिंग ऑयल, बेसिकली 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, फॉर द लुब्रिकेशन पर्पस इनसाइड द इंजन पार्ट्स द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूटिलाइज्ड. पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल, वैसलीन. वैक्स जो जेली के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. बिट्यूमिन, पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग. कुछ बिट्यूमिन नामक जो पदार्थ मिलता है वो पेंट्स के अंदर या तो रोड सरफेसिंग यानी कि जब डामर रोड्स बनते हैं तो उसके अंदर उसका इस्तेमाल होता है. मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दिस आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स. तो जो सब्सटेंसेस हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में से मिलते हैं उसको ऐसे भी कहा जाता है petrochemicals. These are used in the manufacture of detergents, fibers, polythene and other man-made plastics. यानी कि कई तरीके के डिटर्जेंट्स यानी कि कपड़े धोने का पाउडर, फाइबर्स, पॉलिएस्टर है, नाइलॉन है, एक्रेलिक है, पॉलीथीन एंड अदर मेड मेड प्लास्टिक्स, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर. जो कुदरती गैस में से हाइड्रोजन गैस हम ऑब्टेन करते हैं उसका इस्तेमाल यूरिया का प्रोडक्शन करने में किया जाता है. ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. व्यापारी तौर से इसका बड़ा ही महत्व है और ये काफ़ी महंगा भी होता है पेट्रोलियम. इसके लिए इसको काला सोना ऐसा भी कहा जाता है. उसके बाद है नेचुरल गैस. It is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. ये सबसे महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसको पाइप से ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेजरली इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब पाइप्स के द्वारा इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. यानी कि जब भी कुदरती गैस को बड़े ही ज़्यादा दबाव के अंदर स्टोर किया जाए, जैसे कि सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर भारी दबाव से इसको स्टोर किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन ऑल्सो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग. इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल. खास करके अभी के जो वाहन है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज CNG इज़ अ वेरी क्लीन फ्यूल. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग in homes and factories where it can be supplied through pipes. Such a network of pipeline exists in Vadodara, some parts of Delhi and other places.
खास करके घरों में और फैक्ट्रियों के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादातर होता है, इसलिए इसकी पाइपलाइन बिछा के जो है अभी हमको घरों घरों में सप्लाई किया जाता है। अभी तो राजकोट है, बड़े बड़े सिटीज़ है, वहाँ पे ये पाइपलाइंस ऑलरेडी आ चुकी है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizers. यानी कि it act as a raw material for various kind of substances. India has a vast reserves of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari delta. यानी कि कृष्णा और गोदावरी के जो डेल्टा यानी कि एक प्रकार से ट्रायंगुलर शेप में मैदानी प्रदेश बनता है, वहाँ से हमें नेचुरल गैस मिलता है। Can coal, petroleum and natural gas be prepared in the laboratory from dead organisms? No, their formation is very slow process and conditions for their formation cannot be created inside the laboratory because that immense pressure and temperature is not possible to create within the laboratory. So it is not easy or it is impossible to made it in the laboratories. Some natural resources are limited. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest and minerals etc. हमने देखा कि कुछ कुछ ऐसे कुदरती संसाधन है कि जिसकी अमाउंट काफ़ी लिमिटेड है, जैसे कि फॉसल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है. We also know that the petroleum and natural gas are also, as well as coal, also fossil fuels. It required the dead organisms million of years to get converted into these fuels. On the other hand, the non reserves of this will last at most a few hundred years. यानी कि पेट्रोलियम और कोल का जो रिजर्व्स है हमारे भारत में वो सिर्फ गिने चुने हज़ारों सालों तक ही मौजूद है. ठीक है, 100 हमारे पास कुछ 100-125 साल तक चले इतना ही हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है. मोरओवर, बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करने से हवा का प्रदूषण भी बढ़ता है और द नेचुरल इकोसिस्टम इज़ वेरी 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 डिस्टर्ब्ड एंड इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू द ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. So, it is advised to us that please utilize this kind of fuel if you necessarily require it. This will result in better environment, smaller risk of global warming, and their availability for a longer period of time. So, there are many positive effects is there after decreasing the utilization of petrochemicals. In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA), this is the short form of Petroleum Conservation Research Association, advises people how to save petrol, diesel while driving. यानी कि हमारा जो मंत्रालय है, एसोसिएशन है, जो पेट्रोलियम को कंजर्व करने के बारे में रिसर्च करता है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है कि जिसकी वजह से आप पेट्रोल को मिनिमम इस्तेमाल कर सकते हो. ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. यानी कि वाहन को एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, 40 है तो 40 की स्पीड के ऊपर हम चला पाए, ऐसी कंडीशंस हमें बनानी चाहिए. अब सिटी में जा रहे हो, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू, बट it is possible that you should run your vehicle on the speed of 20 to 30. It is not required to first to accelerate your vehicle up to 80 and then after decrease the speed up to 20 to 30 km per hour. So frequent acceleration and deceleration of speed is not advisable. Switch off the engine at the traffic lights. It is also suggested by many of the NGOs that please shut off your bike when you are stopped at a traffic signal. Ensure correct tire pressure. It is also helpful in the reduction of consumption of petrol. Ensure regular maintenance of the vehicle. Because of the less maintenance, there are chances that the fuel consumption is higher. Okay, so dear students, here it is completed your unit number 5, petrol, coal and petroleum. Okay, so I hope that it is very crystal clear in your mind.
that how the coal and petroleum are manufactured and why it is need to be used very carefully and in a manner. Thank you.